Hello, Assalamu alaikum and very good afternoon everybody. मेरा नाम साइमा असगर है. I am a social worker and also serving as Executive Director, New Life Rehab Center, Sialkot. And once again, welcome you all to join us with another very important topic, preventing drug use before it begins. और आज का ये लाइव सेशन इस हवाले से भी ख़ास अहमियत का हामिल है कि आज के हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं वो इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, ग्लोबल ट्रेनर हैं और स्पेशली ही बिलोंग्स टू मालदीव्स। और आज हमारी रिक्वेस्ट पर वो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है हम सब लोग इस लाइव सेशन से और आज के टॉपिक से बहुत ही न्यू चीज़ें सीखेंगे, लर्न करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये लाइव सेशन इस हवाले से भी ब्लेसिंग है कि आज के हमारे इंटरनेशनल गेस्ट स्पीकर हमें उर्दू और हिंदी लैंग्वेजेस में साथ-साथ एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि हम सब लोग आसानी से आज के टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। और आज की इस लाइव सेशन को आप हमें जॉइन कर सकते हैं यूथ फोरम पाकिस्तान फॉर ड्रग यूज़ प्रिवेंशन के फेसबुक पेज से, आयसा पाकिस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से, और इसके अलावा यूथ फोरम पाकिस्तान के भी यूट्यूब चैनल से आप हमें जॉइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आज का जो लाइव सेशन है ये 1 घंटे के लिए होगा और इनिशियली हम इसमें अपने गेस्ट स्पीकर के थ्रू प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे। वो आपके साथ जो भी आज का टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ-साथ लास्ट के जो 15 मिनट्स हैं उसमें हम क्वेश्चन और आंसर का एक सेशन होता है हमेशा की तरह हमारा। और इस लाइव सेशन में आप हमें अगर कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए जा सके और अपने गेस्ट स्पीकर के थ्रू उनको रिस्पॉन्स किया जा सके। और इससे पहले कि ज़्यादा वेट ना किया जाए, अब now I would like to introduce one of our very experienced, globally renowned and committed guest speaker. As I told you earlier, he belongs to Maldives, and he's very familiar all over the world. Especially you know, he's having almost 2 decades of experience nationally and internationally, both in drug demand reduction field. I was talking about Mr. Ali Adi from Maldives. So he is very passionate advocate, educator, and trainer for evidence-based solutions and highly knowledgeable global trainer. If I talk about his credentials, he is holding international certified addiction treatment professional certificate. He's also achieved 5 levels of certification as internationally recovery coach and global drug demand reduction trainer. And I would also like to announce and share that, and once again, I would like to congratulate that recently he awarded with the Phoenix Award for outstanding contribution to drug demand reduction field at the International Recovery Symposium in Sarawak, Malaysia. I was also there, and it's very a great and proud moment for all of us that today we have a globally renowned expert and trainer with us. So I would like to warmly welcome our guest speaker, Mr. Ali Adib from Maldives. Assalamu alaikum, sir, and thank you for your precious time to join us. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये मेरा दूसरा सेशन है आप लोगों के साथ और हमारा बहुत पुराना दोस्ती है। we all started together in I still remember we started together in Thailand in the Sukhsol Hotel. That's the first time we met in 2013, I think. Since then we have known each other, we have been working together, we have been training together, and it's a great pleasure to be able to do a session for Pakistan. And other than my sister Samia, there are so many others who are there that I could mention, so many friends, so many colleagues. Today I want to talk about prevention. So हम हमारे देशों में इतना अहमियत नहीं देते, हमारा सरकार भी और हम भी इतना अहमियत नहीं देता प्रिवेंशन को जितना हम ट्रीटमेंट को और इंकासरेशन को देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ट्रीटमेंट देना नहीं चाहिए या रिकवरी सपोर्ट देना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रिवेंशन
प्रिवेंशन को हम इतना ज्यादा फोकस नहीं देते जो हम ट्रीटमेंट और रिकवरी और इंकासरेशन को देते हैं। तो ये कंटिन्यूम ऑफ केयर है। जो भी ये फील्ड में वर्क करेगा उसको बहुत फेमिलियर होगा ये कंटिन्यूम ऑफ केयर। सो इसमें इसमें स्टार्ट होता है प्रमोशन और देन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और रिकवरी। मैं आज का फोकस बहुत ज्यादा प्रिवेंशन में करूंगा। Thank you. Now, when you talk about ये प्रिवेंशन क्या है, कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रिवेंशन वो है जो कुछ होने के बाद भी प्रिवेंट किया जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो उसको इंटरवेंशन किया जाता है। प्रिवेंशन का एम है, ऑब्जेक्टिव है सब्सटेंस यूज टू हेल्प यंग पीपल, particularly young people, avoid or delay the initiation of use of psychoactive substances. And if they have already started, to avoid the development of disorders. तो दो काम, पहले स्टार्ट करने के पहले हम एक्शन लेने का है, और दूसरा स्टार्ट हुआ तो वो लोगों को मेंटल हेल्थ नहीं तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर डेवलपमेंट होने के पहले हम उन लोगों को पकड़े और कुछ इंटरवेंशंस वगैरह वगैरह करें। तो जनरल एम ऑफ सब्सटेंस यूज प्रिवेंशन इज मच ब्रॉडर। सो when you talk about prevention, it's very broad. The health and safe development of children and youth to realize their potential and become contributing members of community and society. तो ये सिर्फ प्रिवेंशन के ड्रग प्रिवेंशन सिर्फ ड्रग को प्रिवेंट नहीं करता, बहुत सारे चीजों को as we go along we'll get to know that prevention, when you do a prevention program, it doesn't just address substance use, it does much more. Now, हमारा डेफिनेशन ये है कि प्रिवेंशन इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू अवॉइड प्रॉब्लम्स बिफोर दे ओकर। ये हमको मालूम होना चाहिए कि ड्रग्स है, हमारा यंग लोग और हमारा चिल्ड्रन को ऑफर आएगा। ऑफर आने से पहले हम जो करें वो प्रिवेंशन होता है, प्रोएक्टिव। मेरा ऐसा मानना है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो हम काम करते हैं, जैसे मालदीव्स में, हमारा बहुत रिएक्टिव कल्चर है। हम जब कुछ होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, वायलेंस, ड्रग यूज। सो हमारा रिएक्शंस इनफेक्टिव है। ट्रीटमेंट हमारा जेल्स भरा हुआ है, हमारा ट्रीटमेंट सेंटर्स में जगह नहीं है। तो इसीलिए ये वो ट्रीटमेंट और इंकासरेशन वो रिएक्टिव है, प्रिवेंशन इज प्रोएक्टिव। Reactive policies and strategies are expensive and ineffective. Now, हमको पता है कि साइंस के वजह से हमें पता है कि अगर कोई उसके ब्रेन डेवलप होने के पहले, फुली ब्रेन डेवलप होने के पहले ड्रग यूज पे गया तो उनको निकालना और उसको ट्रीटमेंट देना भी मुश्किल होता है। our brains develop in our until our mid-25, in our mid-20s. So that means 25 or 26. So before that, mostly according to UNODC, drug use happens. Mostly people go into drugs when they are below 18 years of age. So most of the young people who start using drugs, they start brain fully develop नहीं होता है। So इसीलिए उनका डैमेजेस बहुत सीरियस है और ट्रीटमेंट में भी इफेक्ट नहीं आता। ये अगर कंपैरिजन के बात किया जाए तो ऐसा है कि अगर मैं अभी ड्रग यूज स्टार्ट करता हूं और मुझे ड्रग यूज डिसऑर्डर डेवलप होता है, और कोई 14 इयर्स और 15 इयर्स में स्टार्ट करता है और उससे भी डेवलप होता है, मुझे एक
एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट में मैं रिकवरी पे आ सकता हूं, लेकिन वो बच्चा जो 16-14 में स्टार्ट किया उसको 8 और 9 टाइम्स ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि उसका डैमेजेस हाई है. This is one of the main reasons why prevention is so important. We shouldn't wait until we see signs. We should do things proactively and try to stop drug use before it happens. So these are some of the UN resolutions that we have signed. We have the International Conventions of Drug Use, and most of these actually tell us to start prevention. Now, just recently in 2022-2024, we had the Declaration of Oviedo, which says, ये डिक्लेरेशन बहुत फोकस करता है प्रिवेंशन को. ये इसका मानना है कि ये रिसर्च का मानना है कि हम इतना फोकस नहीं देते प्रिवेंशन को जितना हम ट्रीटमेंट और हार्म रिडक्शन और रिकवरी सपोर्ट को देता है. तो प्रिवेंशन क्यों प्रिवेंशन? तो अगर हम एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स यूज करें तो ये वो हेल्थ को सेफगार्ड करता है. और वो when you look at the financial or the economic costs, that also goes down. We empower individuals. We create better futures for our children to grow up. We create safer societies if we do prevention. So there are many reasons why prevention is important. So a prevention program involves reducing risk factors and enhancing protective factors to promote health and well-being. हमको साइंस के 30 years का रिसर्च ने हमको बता दिया है कि हमको मालूम है कि इंडिविजुअल्स में भी और कम्युनिटीज में भी, फैमिलीज में भी, स्कूल्स में भी, कम्युनिटीज में भी ये रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है. अगर रिस्क फैक्टर्स बड़ा है, अगर रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है, तो ड्रग यूज, वायलेंस, बुलिंग, अर्ली प्रेगनेंसी, डिलिक्वेंसी, ये सब कम्युनिटी में और इंडिविजुअल्स में आता है. लेकिन अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ज्यादा है तो ये सब कम हो जाता है. तो हमको मालूम है जैसे कि if you take one risk factor that is cross cutting to a lot of things is family mismanagement. अगर family mismanagement के वजह से, family conflict के वजह से young children go into drug use, go into violence, go into bullying, go into delinquency. So ये इस कोर्स को अगर हम टारगेट करें और इस कोर्स के ऊपर हम प्रिवेंशन प्रोग्राम्स करें तो ये सब negative factors will become less. So that is just one risk factor. So when you look at risk factors in, say, for example, like I told you, if you have family conflict leads into so many other issues like drug use, like violence, like bullying. And if we address family issues or family conflict, we can actually see that we will mitigate all these other problems. Now, when you look at prevention का approaches वो है जो universal है, selective है, indicative है. Universal है तो जैसे एक एग्जांपल देने के लिए, फुल स्कूल में, एक स्कूल में हम प्रिवेंशन प्रोग्राम, सारा स्कूल को प्रिवेंशन प्रोग्राम हम एड्रेस करता है तो यूनिवर्सल है, क्योंकि सारे बच्चे इसमें शामिल हो गए. सिलेक्टिव जो है, जो हमको दिखाई दे, स्कूल से हमको दिखाई देता है कि ये बच्चों में मेंटल हेल्थ इशू है, ये बच्चों के फैमिली में ड्रग इशू है, तो ये बच्चों जो यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ ड्रग बहुत आसानी से मिलता है. सो वो बच्चों को हम सिलेक्टिव प्रिवेंशन प्रोग्राम्स फोकस करते हैं. और तीसरा इंडिकेटिव जो है, जो हमको पता चलता है ये बच्चों ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है, ये बच्चों ने
कैनबिस यूज करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब स्टार्ट किया है, लेकिन वो लोग अभी उस लोगों को और वो बच्चों को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर नहीं डेवलप नहीं हुआ, तो उन बच्चों को हम इंडिकेटिव प्रोग्राम्स में डालते थे। तो यूनिवर्सल है जो सारे स्कूल में सिलेक्टिव, जिसमें रिस्क ज्यादा है, और इंडिकेटिव जो स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उसका डेवलपमेंट, उसका सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर डेवलप नहीं हुआ अभी। और दो जब प्रिवेंशन के बारे में बात किया जाए तो ये दोनों टाइप का प्रिवेंशन का जिक्र बहुत कम किया जाता है, वो है एनवायरमेंट प्रिवेंशन और सोशल नॉर्म्स अप्रोच प्रिवेंशन। तो ये एनवायरमेंटल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज टू चेंज द एनवायरमेंट to reduce the occurrence of harmful behavior. Now, example, in Iceland and Croatia, curfew hours for minors to make family management easier, reduce injuries and intoxications, and reduce substance use among youth. And when you look at in a research in 2021, so these are environmental prevention. So एक सोसाइटी में, जैसे हमारे देश में बहुत सारे आइलैंड्स है, तो हम एक आइलैंड में अगर एनवायरमेंटल प्रिवेंशन का अप्रोच किया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम स्कूल से मिलकर ऐसा करेंगे कि स्कूल चिल्ड्रन shouldn't be out on the streets after 9 o'clock. So curfew for school children. So ये प्रिवेंशन का एनवायरमेंटल प्रिवेंशन अप्रोच है। अगर हमारे सिटी में या हमारे कम्युनिटी में बहुत सारा पार्क्स है और वहाँ लाइट्स कम है, वहाँ ड्रग यूज और कुछ भी लॉलेसनेस और डिलिक्वेंस एक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम वहाँ ब्राइट लाइट्स वहाँ डाले तो ये कम होगा। ये एनवायरमेंटल प्रिवेंशन है। और एनवायरमेंटल प्रिवेंशन का एक बहुत सक्सेसफुल इंटरवेंशन है स्मोकिंग में, जो if you are not 18 you are not able to buy, or if you are not 20 you are not able to buy cigarettes. This is also environmental protection, environmental prevention. Or you can't buy single cigarettes, you have to buy a packet. So these are environmental prevention interventions which are very famous, which has worked all around the world. And then the social norms approach. ये social norm जो होता है वो लोगों के सोच को बदलने के लिए ये इंटरवेंशन किया जाता है। जैसे कि स्कूल में अगर हम स्कूल में जाकर बात करें तो कुछ लोगों से और बच्चों से बात करें तो बच्चे यूजुअली हमें बताएंगे सब लोग स्मोक करते हैं। हमारे स्कूल में ग्रेड 12 का सब बच्चे स्मोक करते हैं। तो ऐसा सोच है सब, their thinking is like that everybody, all the children in grade 12 smoke cigarettes. So this creates a sense of belonging for these young children to start smoking. But ये social norm approach ये जो है ये बताता है नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग स्मोक नहीं करते, सिर्फ 10% स्मोक करते हैं, बाकी 90% नहीं करता। तो ये अप्रोच ऐसा है। तो ये स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाता है, mainly in schools. So you do a survey and you find out how many people are drinking, how many young people are smoking, how many people are using marijuana, and then you use these facts to inform young people. Okay, so like this. When students realize that their peers are not using substances, they don't have the pressure to fit in. तो ये ऐसे ही ये सोशल नॉर्म्स अप्रोच ऐसे यूज किया जाता है। और जब मैंने स्टार्ट किया अभी तो मैंने बताया कि अगर हम प्रिवेंशन प्रोग्राम, एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम स्कूल में करें, वो सिर्फ सब्सटेंस यूज को नहीं, बहुत सारे चीजों को वो एड्रेस करता है, मेंटल हेल्थ को, वायलेंस को, बुलिंग को, डिलिक्वेंसी को, वो सब को एड्रेस करता है, सिर्फ ड्रग यूज को नहीं। सो इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम। सो जब हम स्कूल में बताएं कि हम प्रिवेंशन प्रोग्राम हम
स्कूल फोकस प्रिवेंशन प्रोग्राम हम यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सिर्फ हम सिर्फ ड्रग्स को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है और चीपर है। एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन इज कॉस्ट इफेक्टिव and early childhood intervention called nurse family partnership, in which specially trained nurses periodically visit first time mothers during their pregnancy and first 2 years of their child's life, was shown in an analysis by the Washington State Institute of Public Policy to save taxpayers $2.88 for each dollar invested. The same analysis found that a component of elementary school intervention called the good behavior game saved taxpayers 25.92 from each dollar. और 2022 का ये रिसर्च कहना है कि अगर हम $1 प्रिवेंशन में इन्वेस्ट करें, एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन में इन्वेस्ट करें, तो हम वी आर सेविंग $400 from occurring costs to society, like medical, social, mental health, a lot of things. So it's very important for us to advocate for prevention. Say, for example, if I take my country, मेरे देश में प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन का फोकस बहुत छोटा है। हम बहुत सारे पैसे we spend a lot of money on treatment and incarceration, और ये दो इंटरवेंशंस के रिजल्ट्स इतना इफेक्टिव नहीं है। और मेरा ये मानना है कि विद पॉलिटिशियंस दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, वो उनको रिजल्ट्स अभी चाहिए, तो इसीलिए वो लोग प्रिवेंशन को बहुत फोकस नहीं देता, क्योंकि प्रिवेंशन का रिजल्ट टाइम में दिखता है। जैसे कि ये अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन, नर्स फैमिली पार्टनरशिप, और जो कुछ प्रोग्राम्स ऐसा है कि जो स्कूल में, प्री स्कूल में होता है और उसका रिजल्ट 5-10 साल बाद आपको मिलता है कि ये लोग जो प्रिवेंशन प्रोग्राम में, ये बच्चे जो प्रिवेंशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे, इन लोगों को अगर जाकर देख ले 15 इयर्स और 10 इयर्स के बाद देख ले, तो हमको पता चलता है कि वो ड्रग यूज नहीं करता, स्मोकिंग नहीं करता, बुलिंग डाउन है, वायलेंस में डाउन है। तो उसका रिजल्ट टाइम लेता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हमारा पॉलिटिशियंस को ये ऐसा इंटरवेंशन चाहिए कि जैसा रिजल्ट अभी नहीं तो इमीडिएटली दिख पड़े। तो थोड़ा मैसेजेस है। The earlier the better. Focus on development, not information. It's never too late. Used evidence-based program, many vulnerabilities, many settings. So one of the most important things about prevention is that multi-component prevention systems actually work much better than standalone prevention. So what I'm trying to say is कि एक प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो कम्युनिटी में जो सिस्टम है, वो सिस्टम एड्रेस करेगा कम्युनिटी को, स्कूल को, फैमिली को। 3 इंटरवेंशन जारी रहेगा एक प्रिवेंशन प्रोग्राम के अंदर। सो इसका रिजल्ट बड़ा है 3 मल्टी कंपोनेंट में, और द अर्लियर द बेटर। तो अब यूएनओडीसी ने इस साल लॉन्च किया हुआ है चैम्प्स इनिशिएटिव, Children Amplified Prevention Services. So if you have a chance, I would suggest that you go into Hello, dear audience. Yes. Sorry. Yes, please. If you go into Google में जाकर आप ये लिख लीजिए यूएनओडीसी का चैम्प्स इनिशिएटिव क्या है। ये इस साल वो लोगों ने लॉन्च किया है। सो ये ऐसा प्रोग्राम है कि 5 years to 18 years बहुत सारे इंटरवेंशंस चिल्ड्रन फोकस्ड,
सो बहुत सारे ये प्रिवेंशन के लिए दुनिया में बहुत अभी बहुत बातें हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है शुरू से भी, हम इतना फोकस प्रिवेंशन को नहीं करते। हम Hello, सिर्फ dear audience. Sorry for the inconvenience. I think he's back. I would तो like to क्या हुआ? introduce once again that. Sorry, I think there was some internet issue. So you ओके। can continue. Yes, because it's raining in our city, so maybe we have some issues. That's why. हाँ, यहाँ भी अब कुछ दिन हो गए रेन है, मॉर्निंग में रेन है, दिन में बहुत धूप है। एंड इन Oh, one day we see two extremes: very hot in the morning, afternoon it's heavy torrential rain, full flood and everything. So the weather oh, is now crazy. yeah. Sometimes, but sometimes. So I would like to introduce once again that हमारे साथ इस वक्त एक ग्लोबली रिनाउंड एक्सपर्ट ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर अली अदीब फ्रॉम मालदीव्स, जो कि तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं नेशनली और इंटरनेशनली इन ड्रग डिमांड रिडक्शन फील्ड। ही इज़ अ पैशनेट एडवोकेट, एजुकेटर एंड ट्रेनर फॉर एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस एंड हाईली नॉलेजेबल ग्लोबल ट्रेनर। और आज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हम सब इनसे सीख रहे हैं। और इनकी सारी जो क्रेडेंशियल्स मैंने शुरू में भी शेयर की, उसके अलावा ये भी है, आप सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये हमारी लैंग्वेज में हमारे लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्पेशली उर्दू हिंदी मिक्स में। So once again, we welcome you, Mr. Ali Deep from Pakistan, and thank you for your time. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो मेरा ये मानना है कि टीचिंग और ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज इट increases your skill and it increases your knowledge while you're giving this information to other people. And also uh, what we believe is that you can't keep it unless you give it away. So it's something that we believe in. So the Almighty has given me this opportunity, given me this knowledge, and it's a blessing. So it's my responsibility to spread this blessing to wherever I go, to whomever I can. So thank you That's again, sister, for this opportunity. my pleasure, sir. Thank you. So प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, बहुत सारा प्रिवेंशन प्रोग्राम्स है अभी भी दुनिया में जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्लाइड में हम दिखा रहे हैं कि हमको रेडीमेड सूट चीपली मिलता है। अगर बिस्पोक हम सूट बनाना गए तो बहुत टाइम भी लगता है और बहुत सारा पैसा भी लगता है। इसी तरह प्रिवेंशन प्रोग्राम से, एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन प्रोग्राम से बहुत सारा यूएनओडीसी में है और नाइडा में है, समसा में है। ये सब फ्री में ऑनलाइन you can actually access these prevention programs. So you don't have to make your own prevention program. You just have to find what your needs are. Now, for example, ऐसा कि जैसे एक एग्जांपल में हमारे स्कूलों में बहुत ज्यादा वेपिंग चल रही है। बहुत यंग एज से ग्रेड 6-7 में वेपिंग शुरू हो रहा है और वेप के अंदर अब हैश ऑयल और ये कैनबिस ऑयल भी डाल सकते हैं और ऐसा कार्ट्रिज भी अब अवेलेबल है। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि 14-15 year old school children smoking cannabis through vape. तो ये मेरा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट अगर मैं प्रिवेंशन प्रोग्राम क्लियरिंग हाउस में या समसा में डालूं तो वो दिखाएंगे मुझे ऐसा एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम्स जो स्कूल्स पर टारगेट हो चुका है और वो टेस्टेड और उसका रिजल्ट भी मिल चुका है साइंटिफिकली। सो एविडेंस बेस्ड, so it's very easy. So we don't have to make a suit. We can just buy a suit and make it fit it into our community. Now, for example, most of these programs are very much culturally based on Western cultures. लेकिन पाकिस्तान और हम इस्लामिक कल्चर से, तो हमारा ये वो कुछ प्रोग्राम का कुछ कंपोनेंट्स हमें सूट
नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि हम डेवलपर से बात करें, ये हमारा इस्लामिक कम्युनिटी है, हम मुस्लिम हैं, तो प्रोग्राम में कैसे चेंजेस लाए कि प्रिंसिपल्स को कोई प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स को कोई इफेक्ट नहीं कर सके। तो डेवलपर हमें हमें सवाल भेजेंगे, हम उसका जवाब भेजेंगे, तो वो हमें बताएगा या तो इस प्रोग्राम का ये तुम थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो तुम्हारे कल्चर के लिए। तो इट्स नॉट वी डोंट हैव टू मेक प्रोग्राम्स, so it's already there. So this is a violence prevention evidence-based program for youth violence and child maltreatment. So this Inspire is there, and this Inspire is a program by UNODC, so it's also available. It's has a lot of evidence that it works. It has been done in so many countries. So and this UNODC family-based prevention programs in the public domain, this is also available for low resource settings for all family. The Strong Family Program, Family United. Yes, Strong Family Program, they have done this in the camps also. जिसका जो वो चल रहा है, दो लोग जो कैंप्स में रहते हैं वहाँ फैमिली जो रिसोर्सेस लो है, उस जगह में भी ये टेस्ट किया गया है और इसका रिजल्ट मिल चुका है. So there are so many we can use. So these are family programs that we'll be able to use in to prevent drug use. So this is for schools. Lion Quest, it has been evaluated. UNODC has evaluated this in 8 countries globally. So this is also easily available. So we just have to bring it and make some little changes without affecting the principles with fidelity, so we can set it in our communities. So this is also a freely available prevention program if you want to. And Unplugged, I think this has been done in Pakistan also. Unplugged was done in Pakistan. I spoke to the developers recently. I asked them whether I wanted to train myself as a to deliver ये Unplugged program, और वो लोगों ने मुझे बता दिया कि ये पाकिस्तान में it has been done in Pakistan, ये Unplugged. कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये वो लोगों ने ये प्रोग्राम रन किया हुआ है पाकिस्तान में. तो यहाँ क्या चलता है कि I have to observe and then I have to do TOT and then implement this program. And this one of the biggest prevention programs in the world, the whole state full community-based prevention program is the Icelandic model. So this Icelandic model, Iceland was previously one of the places where बहुत सारे बच्चे शराब में, स्मोकिंग में, कैनबिस में जा रहे थे, और वो लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी कि कैसे वो लोग ये स्टॉप करें. तो वो लोगों ने एक एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम बनाया, द आइसलैंडिक मॉडल. तो आइसलैंडिक मॉडल ऐसा है कि उन लोगों ने देखा है कि बहुत सारा ये जो यंग चिल्ड्रन वाज गोइंग इनटू ड्रग्स, ये बहुत मायने से रिड्यूस हो गया है इस प्रोग्राम के वजह से. तो ये प्रोग्राम अभी वो लोगों को सिखा भी थे. तो ये every year they have this conference in Iceland, Planet Youth, where we can go and learn this program. So Ireland is doing the program in Ireland, Australia is doing the program, in so many other countries they are doing this program. So it is an evidence-based program which has shown so much evidence. And this Iceland actually says that their recent wins in the World Cup is also because of this program. So it's a very much it's a huge program that we can study and we can replicate in our communities. And there are so many others like communities that care. It also has a lot of evidence. So बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन प्रोग्राम हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं. और अगर आप लोग को प्रिवेंशन सीखना है तो आप लोग लिखिए
कोलंबो प्लान का एक यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रिवेंशन करिकुलम। सो उसके उसमें मैं भी एक ट्रेनर हूँ, और उसका मैनेजर्स का ट्रेनिंग है, और कोऑर्डिनेटर्स का ट्रेनिंग है। दो दो तरह के ट्रेनिंग है। सो उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिया जाता है फैमिली प्रिवेंशन को, स्कूल प्रिवेंशन को, और ये मीडिया बेस्ड प्रिवेंशन को, वो सब आप सीख सकते हैं। और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी वो यूपीसी भी आप सीख सकेंगे ऑनलाइन आईसुप में। So I am waiting for that, and inshallah we are trying to inshallah I'm trying to do the exam also this time for prevention. So they had the first exams for ISIP for prevention in Dubai, and again this time I think they are going to have the exams. So inshallah I'm preparing to do the exams. Inshallah I'll be successful in getting my certification as a prevention expert. And this is also something that can be used. ये बहुत सारे देशों में अब यूज किया जाता है। ये यूएनओडीसी का लिसन फर्स्ट है। सो इसमें ये यूट्यूब वीडियोस है, और ये आप लोगों को अब आप लोग अगर यूएनओडीसी से बात करें तो वो लोग आपको रॉ फाइल्स देगा, और आप लोग ये हिंदी में या उर्दू में डब कर सकते हैं, और टीवी पे दिखा सकते हैं। ये these are evidence based media programs that have shown results in so many countries, and it's very short YouTube videos. The science of routine, the science of listening. So these are how you treat your kids when they are growing up. For parents, listen first. So if you show this on TV, you saw this on social media, you see that it will teach parents on skills on what is the science of routine, what is the science of hugging, what is the science of playing with children, what is the science of listening. So, and super skills are also there. So this is something that you can use in your own country, and I suggest that the Youth Forum Pakistan, I think you can do a lot. If you want to, I can communicate for you, or you can communicate on your own with UNODC, and they will give you the result. They will give you this to use in your own languages, and this is very nice. If you have a chance, I suggest आप लोग अगर चांस मिले तो गूगल पे जाइए और लिसन फर्स्ट यूएनओडीसी को के वेबसाइट में जाइए और देखिए। बहुत शॉर्ट वीडियोस है जो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को प्यार दे, कैसे बच्चों की बातों को सुने, और कैसे साइंस ये एविडेंस क्या है कि अगर आप बच्चों के साथ खेले तो उसका एविडेंस क्या है। इसमें वो खेलने से बच्चों का क्या बढ़ सकता है, वो सब आपको दिखाई देगा। बहुत सारे वीडियोस है। So I would suggest that after the program you get a chance, you go and see all these videos. It's really nice and it's very effective. And so I am coming to the last part of my slides. I don't want to take a lot of time because now हमारा attention span भी हम एविडेंस बेस्ड के बात करें तो हमारा ऐसा मानना पड़ेगा कि एविडेंस हमको दिखाता है कि इंसानों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। तो बहुत ज्यादा हम अगर बात करें तो उसका सिर्फ 3 मिनट का बात आपको समझ में आएगा और उसके बाद आपका माइंड कहीं जाएगा। तो इसीलिए मेरा स्लाइड डेक भी बहुत शॉर्ट किया हुआ है और टू द पॉइंट किया हुआ है। सो ये मेरा लास्ट है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तान में कंसिस्टेंट रिसर्च के लिए आप लोग एडवोकेट करें, क्योंकि ये ड्रग सिचुएशन है वो बहुत गंभीर है और बहुत फास्ट चेंज होता है। जैसे कि हमारे देश में पिछले 10-20 सालों से ओपिएट्स चल रहा था।
लेकिन अब हमें पता चल अब हमारे देश में बहुत सारा स्टिम्युलेंट्स आया हुआ है, और ये यूएनओडीसी की रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आप लोग जब पढ़े तो आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा ये सारे दुनिया में ये स्टिम्युलेंट स्प्रेड हो रहा है, और इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। बहुत न्यू न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेस है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, जिसके ऊपर रिसर्च भी नहीं हुए, तो ये सब आ रहा है। तो अगर हम कंसिस्टेंटली रिसर्च करते रहे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ड्रग सिचुएशन क्या हो रहा है, और उस स्टडी को बेस करके आप लोगों को आप लोग प्लान बना सकता है कि आपका नेशनल ड्रग पॉलिसी बना सकता है, जिसमें आप टारगेटेड इंटरवेंशंस ला सकता है, और एडवोकेसी फॉर एविडेंस बेस्ड नेशनल ड्रग पॉलिसी, नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप लोगों का अपना एसेंशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी प्रिवेंशन में वर्क करे उनको पता चलना चाहिए कि ये पाकिस्तान का नेशनल स्टैंडर्ड्स है, और इस स्टैंडर्ड्स के बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो भी करेगा इस स्टैंडर्ड्स के ऊपर करेगा, और इस स्टैंडर्ड्स हमें बता देगा कहाँ हमें फोकस करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप करना है, और एडवोकेसी। और मैं ये जो भी मुझे जहां भी मुझे मौका मिले मैं ये कल्चर ऑफ प्रिवेंशन का बात करता हूँ। ये कल्चर ऑफ प्रिवेंशन ऐसा है कि हमें ये रिएक्टिवनेस हमें छोड़ना चाहिए, और हम ऐसा प्रिवेंशन कल्चर बनाना चाहिए जो हम बहुत प्रोएक्टिवली कल्चरली फोकस करें प्रिवेंशन को। हम रिएक्टिव एक्सपेंसिव रिएक्टिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज हम छोड़ दे, और हम बिलीव करें कि हमारे सोसाइटी में ड्रग्स है। हमारा मेरा 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 बच्चा भी, और मेरा सन और मेरा डॉटर कल भी उसको उसके उसके सामने ड्रग्स आएगा, और उसको चॉइस मिलेगा यूज करूं या नहीं करूं, तो उसको इसे इस तरह के सोच हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सोच अभी ऐसा है कि मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार से पढ़ रहा हूँ, बहुत मैं उसका मॉनिटरिंग बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उसका देखभाल बहुत अच्छा कर रहा हूँ, वो कभी भी ड्रग्स में नहीं जाएगा, ये हमारा होप है, और इस गोल पर हम काम करते हैं। लेकिन हमको रियलिस्टिकली बिलीव करना पड़ता है कि स्कूल में भी ड्रग्स है, कम्युनिटी में भी ड्रग्स है, उसका पियर्स भी है वो ड्रग्स यूज कर रहा है। तो हम रिस्क फैक्टर और प्रोटेक्टिव फैक्टर नजरिया में हम देखें तो हम कितना भी प्रोटेक्टर हमारा बच्चा हमारे हाउस होल्ड में रख के वो स्कूल में जाए, और स्कूल का पीयर प्रेशर, और स्कूल में कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे हो दो स्मोकिंग ओके है, पीयर प्रेशर की वजह से स्मोकिंग ओके, कम्युनिटी में ऐसा पीयर प्रेशर है, वो सब तो ऐसा है कि हमारा रिस्क फैक्टर्स बड़ा है प्रोटेक्टिव फैक्टर से। सो हमारा थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें कि सब जगह हमारा बच्चा सेफ हो, स्कूल में भी, कम्युनिटी में भी और फैमिली में भी। So that is the focus we need to keep on. We have to be very realistic. We have to believe that drug use is in school. It's very easily available in the community. I will take care of my child the best way I can. But after he or she leaves the household, there are environments that we can't control, like school and community. So this is a realistic thinking that we need to have, that okay, this is what we are going to do. We'll advocate with the government and human resources. We need to build human resources who understands what prevention is, ethical standards. Like I said, the UPC is a good way to go. And there's one other course that I would suggest most of you do. There's a course called INEP, INEP, from Charles University that you can just do online. It will give you the basic information that you require for to have the competency to understand prevention. So it's free, and you can do it online at your own discretion, in your own time.
if I can write it in the chat, I'll write it in the chat. So if you have time, please go there, and because it's just an it's again knowledge. So that is it. So these are my handles. So you can find me on Facebook, you can find me on TikTok, you can find me on X. If you have any questions, any further questions, my email is there. I am on WhatsApp, and my phone number is also there. So if you're doing a research, or if you need to if you're doing a research on a school project, or if you're doing a school project on drug use, or if you require any kind of information, any kind of help, kindly let me know. I'll be most grateful, most happy to help. And thank you for this opportunity. So if you have any questions, I will give this time to answer some of your questions. Thank you. Thank you very much, Mr. Ali Adib. We are once again very much grateful for you for sharing for your value time and sharing a wonderful presentation with all of us, and especially explaining in Urdu and Hindi. So it's very much convenient for all of us to learn about drug use prevention. और हमेशा से हम एक स्लोगन पे बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आज आपने इस बात को फोकस किया कि ट्रीटमेंट में तो जो लोग हैं इज दे आर सफरिंग एंड वो एक लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, लेकिन हमें अपने कंट्रीज पे अपने लेवल पे जहाँ तक भी पॉसिबल है हम लोग अपनी जो यूथ है या कम्युनिटी के जो दूसरे लोग हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, ताकि ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, ना ही उनको रिकवरी मेंटेन करने की जो एफर्ट्स हैं वो लगानी पड़े। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ इतना यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसे उसके हवाले से एविडेंस बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने हमारे साथ हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। हम लोग आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे थे, सुन रहे थे, उसको समझ रहे थे। तो ये आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी एक जो खासियत ये भी थी कि आपने उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए। यानी ये नहीं है कि हम एक प्रेजेंटेशन जो है वो करें या फिर किसी कॉन्फ्रेंस का वेट करें, हम घर बैठे भी जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। और जो आपने यूएनओडीसी की वेबसाइट का रेफरेंस दिया, आईएनए प्लस जो ट्रेनिंग है उनका दिया, आपने यूपीसी जो यूनिवर्सल प्रिवेंशन करिकुलम्स हैं उनका रेफरेंस दिया, तो दैट्स आल्सो यूनिक। और ये रिसोर्सेज अगेन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है। और मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो आईएनए प्लस प्रोग्राम है, इंट्रोडक्शन टू एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन, आई एम वन ऑफ द फैसिलिटेटर इन पाकिस्तान टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग। सो आयसा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन आपने हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ इसके बारे में शेयर किया। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, मैं अगेन आपका अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे ड्रग यूज़ प्रिवेंशन की। तो इस ये जो लाइव सेशंस हम लोग सर कंडक्ट करते हैं ना, इसका बेसिकली ये मकसद होता है कि प्रोफेशनल्स के साथ-साथ हम अपनी कम्युनिटी को और सोसाइटी को जो दीगर अफराद हैं उनको भी एजुकेट कर सकें। तो मैं ये चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑडियंस कि आप कुछ पेरेंटल स्किल्स के बारे में हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि कुछ इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इस बारे में, ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। तो वो घर में रहते हैं या उनका बाहर सोसाइटी के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता, इंटरनेट तक एक्सेस नहीं होती, तो वो कैसे अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम ड्रग्स? जी। So when you talk about prevention, prevention के हम ड्रग्स के बारे में बात करना है तो हमको एक एज भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, प्रिवेंशन बहुत डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो छोटे बच्चों को हम इंफॉर्मेशन नहीं देते, छोटे बच्चों को हम स्किल्स सिखाते हैं, और स्किल्स सिखाने का द बेस्ट वे इज टू बी अ रोल मॉडल। सो हाउ
तो घर में जो जो मैं मेरा एंगर मैनेज करता हूँ जैसा, वो मेरा डॉटर या सन सीखेगा मुझसे, or how I communicate with others while I'm taking my daughter to school, or bringing her from school, or on the bike when I stop and talk to people, how I behave. So these are small things, very important for to be a good role model. So if you are smoking, uh, and you tell your children not to smoke, that will not work. You have to not smoke, and then you tell your children not to smoke. So sometimes that is also there. So we believe, कई तरह हमको ये हम ये कबूल करते हैं कि जो हम कहते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम करते हैं उसका इफेक्ट ज्यादा है। हम जो कहते हैं उससे भी बड़ा ज्यादा इफेक्ट है जो हम करता है। तो साइंस हमें बता देती है कि जब हमारा बच्चा एंग्री हो जाए या टेंट्रम्स आ जाए, तो हमें टेंट्रम आना नहीं चाहिए। हम उसको अगर हग करें तो हमारा जो पेशेंट है, हमारा जो हार्ट बीट है वो स्लो है, तो हम अगर उसको हग करें तो little by little the child's heartbeat will reflect my heartbeat, and he or she will calm down. So these are little things. So when I told you about listen first, one of the most important things, बहुत मायना रखते हैं हम उनका बात सुने। हम ऐसा बिजी रहते हैं कि हमको उनका बात सुनने के लिए बच्चों का बात सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हम भी बहुत बिजी है, लेकिन एक एफर्ट डालिए और उससे बात कीजिए। Bring her near, tell her to draw something, and when she draws something and shows it to you, look at it, talk about the colors, comment on it, tell the child that you love the person, and this is what you want. And if you communicate, if you listen to your child, it's very important to see that you can get to know them much better, and the relationship is also much better. Now, because we have this I think in our society we don't love them enough, we don't hug them enough, we don't tell them we love them enough. Even if you even at our age, it's very difficult to tell our mothers that we love them. It's very difficult to tell our fathers we love them, because we don't do it. So we say माँ को पता चलेगा कि हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमको बताना चाहिए, हम हमारे बच्चे को भी बताना चाहिए कि बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम वरीड है। आप वो जो तुम्हारा फ्रेंड है वो स्मोक करता है, उसके साथ तुम बाहर जाते हैं तो मैं बहुत परेशान रहता हूं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ भी करो तो which will damage your health. That is why I am worried. That is why I sometimes say things very harshly, because I love you, not because I am not because of anything else. That you might go on a separate way that I don't want. So that is why. So this is very important. So these little things are very important. We don't have to. जब हमें बच्चा मिलता है उसके साथ मैनुअल नहीं आता। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन खरीदे और उसके साथ मैनुअल आता है कि वाटर यहाँ तक भर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्लग यहाँ डालना है, ऐसा हमारे पास मैनुअल नहीं आता बच्चे के साथ। हमें लर्न करना चाहिए कि कैसा है हमारा बच्चा, कैसा है। और one of the most important things is to understand that my child is different from all the other children. Comparison is also very dangerous. Why you didn't get an A report? Saima got an A report. Why didn't you get an A report? It's comparison. We should always appreciate the effort. We should understand that like my 5 fingers are not equal. None of the children are also equal. They are different. So that is also something we need to understand. So thank you again for the time and for your patience.
and thank you for tolerating my Urdu. Although it's very broken, I hope I was able to get through. सर इट्स रियली ग्रेट ऑनर। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि आपने हमें वक्त दिया, आपने हमें इतने अच्छे तरीके से आज का टॉपिक जो कि मतलब ओवरऑल ही पूरी वर्ल्ड को ज़रूरत है, लेकिन आप जैसे एक्सपर्ट और ट्रेनर और ग्लोबली रिनाउंड जो गेस्ट स्पीकर हैं, अगर वो हमारे सेशन को ज्वाइन करते हैं, हमारी ऑडियंस के साथ इतना एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमें वक्त दिया। और सर आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर कि हमारी ऑडियंस की तरफ से भी आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिसिएशन है, और दे आल्सो वांट टू लिसन यू वंस अगेन। अगेन दे इनकी रिक्वेस्ट भी आ रही है हमारे कमेंट्स में कि सर से दोबारा भी आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी और टॉपिक पे भी हमारे साथ इतना अच्छा जो इन्फॉर्मेशन जैसे आज के टॉपिक से रिलेटेड आपने शेयर की है, इसको फ्यूचर में भी हमारे साथ करें। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपके लिए किए हैं, द वे यू आर डिलीवरिंग नॉलेज दैट वाज आल्सो एक्सीलेंट। तो सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और अपनी ऑडियंस के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि आज जो लाइव सेशन है वो ऑटो रिकॉर्डेड है। आप सेम अगर आप आज का जो लाइव सेशन है अगर किसी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर सके या किसी रीज़न की वजह से कुछ हिस्सा आपने आज के लाइव सेशन का मिस कर दिया हो, तो आप दोबारा सेम लिंक पर क्लिक करने से इस लाइव सेशन को दोबारा देख सकते हैं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग जो आज नहीं ज्वाइन कर सके वो इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे लर्न कर सकें। तो हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनका भी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर अली, आपने हमें वक्त दिया। और इंशाल्लाह हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे आपने हमारी प्रीवियस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, हेलो लिटिल प्रिंसेस, जैसे आपने हमारी पहले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें फ्यूचर में भी वक्त देंगे, टाइम निकालेंगे हमारे लिए, ताकि हम लोग जो एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो एक सिलसिला है, जो एक जर्नी है, वो उसको कंटिन्यू रख सकें। सो इंशाल्लाह। पाकिस्तान की तरफ से पूरे पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा इसमें। वो ऑलरेडी आपको बहुत सारे लोग हैं उसमें से जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आप होती हैं और उनमें से अगर हमारी भी पार्टिसिपेशन होती है तो हमेशा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। और वो सब भी आपको हेलो हाय भी कह रहे हैं कमेंट्स में, आप उसके बाद भी आप इसको देख सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंशाल्लाह मैं साइमा सिस्टर के साथ हम प्लान करेंगे कुछ और सेशंस आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मोल्डिव से बहुत सारा प्यार। और आई वुड आल्सो लाइक टू से अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल प्रिंसेस, माय नीस। हेलो, हाउ आर यू? Good. You are now live with us in Pakistan and welcome in Pakistan virtually. This is Sumaya. Sumaya, mashallah, mashallah. Hope you will bring her in ISAP conference in Greece. Yeah, inshallah. Thank you. Sir, thank you very much once again. Thank you, my dear audience, and see you with another topic next time. Thank you so much.